वासुदेव वासुदेव घोष के द्वारा दशकोशी। सचिर अंगिनाय नाचे विश्वम्भर राय, हासी हासी फिरी फिरी मायरे लुकाय। सचिर अंगिनाय नाचे विश्वम्भर राय, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়ের লুকায়। বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু, সচি বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু। বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু, সচি বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু। সচির আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়ের লুকায়। মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে, নাচিয়া নাচিয়া গায় খঞ্জন গমনে। মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে, নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে। সচির আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়ের লুকায়। বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা, শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা। বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা, শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা। সচির আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়ের লুকায়। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you. Okay, so actually we didn't finish chapter 7 last time. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Sayam Rupa Kuramayam Dadati Swapadantikam. Vandeyaham Shri Guruho Shri Padakamalam Shri Kurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunatam Vitakam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Evacha Paritanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai. Okay. Now let's try and do it like this. Okay, so we just did the first 5 items in this explanation on the Angas of devotional service. So briefly, I want to just summarize those first 5 and then we carry on.
तो हमने भक्ति के जो अंग थे उनमें से जो प्रमुख 5 अंग हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, बट अभी हम एक बार उसको दोबारा दोहराएंगे, छोटे उसका सार देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। Okay. So in these chapter 7 and chapter 8, we're going to cover, I think chapter 7 is the first 18 items, and then a couple of items come in the next chapter. 10 pravrittis, 10 things we have to do, and 8 of the things we are forbidden from doing. तो इसके अंदर जो मुख्य पहले 18 चीजें हैं वो अध्याय 7 में बताई गई हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंदर से 18 चीजों में से 10 चीजें ऐसी हैं जो हमने करनी है, और उसके बाद अगली 8 ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है। The first 3 importance are first three items are the most important and relate to taking shelter of the spiritual master. और जो सबसे पहली 3 अंग हैं वो सबसे मुख्य हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। First one was accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. और उसमें से पहला था कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। Second one, becoming initiated by the spiritual master and learning how to discharge devotional service from him. और उसके बाद फिर दूसरा था कि अपने गुरु से दीक्षा लेना और उसके बाद उनसे सीखना कि किस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। And the third one, obeying the orders of the spiritual master with faith and devotion. और फिर तीसरा था अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पूरे दृढ़ता से और सच्चाई से। Fourth one, following in the footsteps of the great acharyas under the direction of the spiritual master. और चौथा था कि पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना अपने गुरु की शरणागत होकर। And fifth one, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. और पांचवा है कि अपने गुरु से प्रश्न करना कि किस प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर सकते हैं। Okay, so now we will start reading from the following. It's स्थान में निवास, residing in holy places. No, it's the one before that. But being prepared to give up everything material for Krishna's satisfaction. It's just a very short one sentence one. शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। हाँ. या just one sentence and then we go on to residing in a holy place. तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? पेज नंबर 60। रीना मेहता माता जी का हाथ। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है कि जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है और जो के दिव्य महत्व का ठीक ठाक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित
तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह ये गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहाँ जहाँ गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि ना तो भक्ति के नियमों की अपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न किया जा सके। उदाहरणार्थ ये कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए, किंतु यदि वह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और उसे पूरा करना चाहिए, किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में ये अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा कि यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे Okay, आध्यात्मिक thank you. जीवन अग्रसर होगा। हरे कृष्ण। Thank you. So here we're emphasizing this fact that one should not take unnecessary severe vows that we may not be able to follow. तो यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें से जो मुख्य बात निकल के आ रही है वो बात ये है कि हमें बिना बात के ऐसे वचन या व्रत या ऐसी तपस्या का प्रण नहीं लेना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। So Amala is saying that if one makes vows that are above his ability, he is likely to break them. And therefore there's two effects from that. One becomes implicated in the sin of breaking his word. And if one considers himself a failure, it may discourage him from devotional service. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे नियम लेते हैं, ऐसे व्रत लेते हैं जो हम नहीं कर सकते और जब वो हम नहीं कर पाते हैं वास्तविकता में समय आने पर, तो उससे दो चीजें, उसके दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम कि हमें अपना व्रत तोड़ने का पाप लगेगा और दूसरा परिणाम ये कि हम अपने आप से निराश हो जाएंगे और अपने आप से ही नफरत करके और उस चीज को सोचेंगे कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। And Prabhupada gives the example of chanting our japa. Prabhupada has said that we must complete a minimum of 16 rounds every day. तो यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं जप करने का कि हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कम से कम रोज 16 माला का जप करना चाहिए। So we must not become over enthusiastic and vow to do something more than that we may not be able to fulfill in future. तो हमें बहुत समझदारी से व्रत लेने चाहिए और ऐसा कोई भी व्रत नहीं लेना चाहिए कि जो हम आज तो भाव में आकर ले लें और आने वाले समय में उसका पालन ना कर पाए। Of course, once we finish our minimum rounds that we vowed, we continue chanting as much as we've got time for. और ऐसा भी है कि जब हम अपने जितना भी हमने कम से कम जप करने का नियम ले रखा है उसको हम समय से पूरा कर लें और उसके बाद भी हम ऐसा ना हो कि माला छोड़ दे। जितना हमें समय लगे उस समय में भी हमें और हरि नाम लेना चाहिए। And Prabhupada also gives us the example, if we're not able to chant our 16 rounds in one day, then we must make it up the next day. And of course, also chant the next day's rounds. और तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि मान लो कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम सेम दिन में, जिस दिन हमारा मतलब हम किसी दिन 16 माला का जप ना कर पाए जो हमारा नियम है, तो हमें उसको अगले दिन पूरा करना है और अगले दिन की 16 माला भी करनी है। Okay, so now we can carry on reading. तो हम आगे पढ़ सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास करना। कृष्ण मैं पढ़ूं माता जी? एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्यों से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना।
उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे पढ़ना माता जी। Yeah, you can carry on. ओके। वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। नेक्स्ट, अभक्तों का संग त्याग। श्री कृष्ण Actually, विमुख। we should just read Urmila's comments on this one. ओके ओके। So Urmila is mentioning that if we offer respectful obeisances to these holy trees like banyan trees, tulsi plants, then that will help us avoid committing offenses of the Vaishnava because we develop a respectful attitude. तो इसके अंदर उर्मिला माता जो श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य हैं वो बता रही हैं उर्मिला माता जी जो प्रभुपाद जी की शिष्य हैं वो बता रही हैं कि अगर हम पूजनीय वृक्ष जैसे कि वट का वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ या तुलसी का पौधा हुआ, अगर इन पे हम प्रणाम करते हैं, इनको आदर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक आदर देने का भाव जागरूक होगा। और यदि हमारे अंदर आदर का जब भाव जागरूक होगा तो हम जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं वो भी कम हो जाएंगे। Good. Thank you. You can continue reading now. पद्मजा माता जी आप एक बार माइक म्यूट कर लोगे? आपका माइक। हाँ, कोई और सॉरी मीतू सिंगला माता जी आप। अच्छा ठीक है। मीतू सिंगला माता जी का हैंड। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अभक्तों का संग त्याग। श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का असामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बताया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी है वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों का साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है और भौतिक इच्छा के वशीभूत है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई रुग्ण अवस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वह उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं। इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त है वह भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक है गीता में भी भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतएव
विष्णु रहस्य में इस देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंसक पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। Good, thank you. So here, Urmila has divided these non-devotees into three distinct classes so we can remember them. तो यहाँ पे उर्मिला माता जी ने अभक्तों की 3 श्रेणियां बताई हैं। So first are the atheists that are completely against the personality of Godhead. तो सबसे पहले आते हैं नास्तिक, जो पूर्ण तरीके से भगवान के खिलाफ होते हैं। They try to satisfy their own desires by their own efforts. They think they're independent and they can complete themselves. तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं अपने ही प्रयासों के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्वतंत्र हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। Okay, the second one we've talked about mundane religious, which Prabhupada has mostly given examples of, is people who worship the demigods in particular because they want to satisfy some personal selfish desires. So they approach through the demigods who are likely to fulfill their desires. तो इसके अंदर फिर बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार के ऐसे लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और अपने जो उनके निजी स्वार्थ होता है उसके लिए ही, सिर्फ उतने समय के लिए ही वो पूजा करते हैं। And sometimes they will tell you, I'm a devotee, I'm a devotee of Lord Shiva, I'm a devotee of Durga, so and so on and so forth. But actually they're interested in their own interests, so they're not really a devotee of anyone. तो वो कभी कभी हम बताएंगे कि हम इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं, हम दुर्गा के भक्त हैं, और हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में किसी के भी भक्त नहीं होते ऐसे लोग। And third, which is not discussed so much in these examples, is the impersonalists who want to obtain liberation in order to satisfy their own desires. और उसके बाद बता रहे हैं कि ऐसे निराकारवादी लोग जो अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं मुक्त होने के द्वारा। Okay, now we can carry on reading. आगे पढ़े। Hmm. हरे कृष्ण माता जी। Yeah, sure. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिर ना बनाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी प्रकार मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यानपूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में 7.13.8 नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच ले कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रमाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। एक बात तो यह है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाई बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतएव कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो। ऐसा शिष्य प्रमाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति
Okay. माता जी Yeah. वॉइस म्यूट। अपनी विद्वता का जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ, सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाही तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है तो वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य चलाया नहीं जाता तो वह स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश में होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करे। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने की बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। Thank you. Okay, so the points are mainly made there. There's nothing extra to add. If someone can carry on reading what's here. Oh, माता जी, here. The activities themselves. Yes? I was just translating what you Okay. okay, continue. Yeah, there's one comment by Omala Mataji. The activities themselves are not forbidden, for even the author, Rupa Goswami, had disciples, constructed fancy temples, and read and wrote many books. Rather, the motives of pride and prestige are what must be rejected. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो भी गतिविधियां यहाँ पे बताई गई हैं, ये मना नहीं किया, क्योंकि जो इस पुस्तक के ऑथर है, मतलब जो श्रीला रूप गोस्वामी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उनके भी शिष्य थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और लिखी भी हैं। जस्ट अ सेकेंड माता जी। Sure. और उनके भी कुछ शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए और उनका निर्माण किया और कई कई पुस्तकें पढ़ी। और जो ये वाला पॉइंट है, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे कार्य करने से जो भी हमारे लिए लोग तारीफ करते हैं या हमारा नाम होता है, हमारा नाम ऊंचा होता है, हमारा प्रचार प्रसार होता है, उस चीज को हमें नहीं स्वीकारना। Okay. Okay, so we can carry on reading. तो आगे कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। मानसी गंगा माता जी का है। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में स्वभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कोई कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्धजीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन की
मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्तों को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। Okay, so Irmala here makes the comment that we have to be especially careful with financial transactions because they have a particular ability to evoke a mode of cheating that weakens the foundation of sadhana bhakti. तो इसके अंदर माता जी बता रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए पैसों के रूप में किसी के साथ व्यवहार करने में और कुछ ऐसी चीजें करने में आर्थिक रूप से, क्योंकि ये जो चीज है ये किसी भी व्यक्ति के अंदर एक धोखा देने की या फिर कुछ भी गलत करने की इच्छा बहुत आसानी से जागरूक कर देती है। और उससे क्या होता है कि हमारी फिर जो साधना भक्ति है उसको हानि होती है और जो उसकी नींव है उसको कमजोर कर देती है ये चीज। One should not, that was also mentioned here, one should not be disturbed by lamentation or overjoyed by gain. तो इसके अंदर ये चीज और भी बता रहे हैं कि किसी को भी दुख में अपने कोई नुकसान हो जाए तो उसका बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, और कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें चाहिए था तो उसके बहुत ज्यादा खुशियां भी नहीं मनानी चाहिए। This is backing this up by referring to quote from Bhagavad Gita. How as someone who is equal in happiness and distress, who is equipoised, who neither rejoices or grieves. So he's quoting, this is a selection of verses from the 12th chapter, 13 to 19. And I think it looks like in every verse, Krishna mentions one who is equal in happiness and distress is very, very dear to him. यहाँ पे भगवत गीता के 12वें अध्याय से लिया गया है श्लोक 13 से 19 श्लोक। उसके अंदर भगवान हर श्लोक में अलग अलग श्लोक में बता रहे कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और जिस व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, जो बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाता है, बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाता, जो जिसको सम्मान मिले या फिर उसका अपमान हो तब भी उतना दुखी रहता है, गर्मी हो या सर्दी हो तो भी, और उसकी नाम हो या उसकी कोई समाज में बेइज्जती है, तो उन सब जब ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति समान रहता है, बिल्कुल उसका व्यवहार एक जैसा रहता है, वैसा जो भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। Okay, so now we can carry on हम्म। to read the next section about the demigods. कोई श्रील है? प्रभुपाद की जय। मैं हम्म। पढ़ती हूँ माता जी। हम्म। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त ना हो, किंतु उसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु वह उसका परम कर्तव्य है कि वह उन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्यों को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः वे सदैव पूजनीय हैं, किंतु उसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए। Next, you can carry on reading this next one and finish the chapter. किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन की पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ
सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव ना तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। Good. Thank you. And now we will carry on with chapter 8. We've just got a quick summary first. Okay, so in chapter 8, in the beginning of chapter 8, there's a list of 32 offenses in serving the Lord, which is covered by the 19th item in the prohibitions, which was avoiding various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshiping the deity of the Lord. तो अब हम अध्याय 8 को प्रारंभ करेंगे और अध्याय 8 में ऐसे 32 अपराध बताए गए हैं जो कि भगवान की भक्ति करने में पूजा करने में वर्जित हैं चीजें, और जो हमें दिक्कत देती हैं। और यहाँ पे अध्याय 7 तक हमने 18वें अंक तक बात करी थी। अब यहाँ पे हम जो 32 चीजों की बात करेंगे वो 19वें से चालू हो रही है। So we've got a long list of offenses. Let's just check. Yeah. So the first one is carefully avoid the offenses in serving the Lord in the temple. So you can read down through all these, at least these first 32, and possibly the next list as well. Yeah, there's a couple of lists here of deity worship offenses. Should I read, Mataji? You can read. पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष नमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणतः ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर में बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, कूहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो
तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने से के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वरा पुराण में हुआ है। Okay. Okay, somebody can carry on with the Varaha Purana verses. मैं पढ़ूं? So, हाँ जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. प्रभु प्रभु प्रभुपाद जी की जय। अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को छूना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के पूजन में विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह से ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब तक कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह से समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ Okay, रहा हो, let's just stop here and talk about Ganapati because Amala has put in a quote from Srila Prabhupada about Ganapati worship. तो अभी हम गणपति जी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। So Prabhupada is giving some conditions if you want to worship Ganesh.
He says, he's writing a letter. This is a letter in 1974. I do not encourage you to worship this demigod Ganesh. It is not required. It is not necessary. तो इसके अंदर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भगवान गणेश की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। Simply worship Krishna. Perform nice devotional service to Krishna. सिर्फ भगवान की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो और उनके प्रति अच्छे से भक्ति करो। Then your lives will certainly become perfect. और फिर ऐसा करने से आपका जो जीवन है आवश्यक रूप से पूर्ण हो जाएगा। Of course, if one has got some sentiment for achieving the blessings of Ganesh, for accumulating large sums of money to serve Krishna, he may do this Ganesh worship privately, not making a public show. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी कोई इच्छा के लिए या धन प्राप्ति के लिए किसी भी अगर ऐसी धन प्राप्ति के लिए जो कृष्ण की सेवा में लगाना है, इसके लिए अगर गणपति जी की पूजा करनी है तो वह कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में इसको पूरा मतलब सामान्य मतलब रूप से समाज में करने की जरूरत नहीं है। But first of all, he must give me $1 lakh every month, not a farthing less. तो इसके अंदर बता रहा है कि अगर कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे उन्हें मेरे को $1 लाख हर महीने देना पड़ेगा। If he can supply this amount, $1 lakh per month, then he will be allowed to do Ganesh puja. और अगर कोई व्यक्ति $1 लाख हर महीने मुझे दे सकता है तो फिर उसे गणेश पूजा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। Otherwise he should not do it. It will not be good. That is my order. तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसके अलावा नहीं करनी चाहिए गणेश पूजा, ये अच्छी बात नहीं है और ये मेरा आदेश है। Okay, now we can carry on with the deity offenses. तो आगे हम पढ़ सकते हैं अर्च विग्रह के अपराधों को। We are actually in the middle of a paragraph. Deities should not be bathed in water touched by nails or fingers. I think I'll only read. Okay. I just need to find. Yeah, the first half of the paragraph was about Ganesh, and then we've got we're starting on some more offenses. I can read. पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति No, before that, there's a little bit in the previous paragraph about less than half of the paragraph, but we didn't finish that paragraph. माता जी अन्य नियम इस प्रकार है, वहीं से शुरू करना है ना? नहीं, वहां से माता जी उसकी 3-4 लाइंस के आगे से Yeah, था 3 or कि 4 lines before Padma Puran. There's 3 or 4 हाँ। lines in the previous paragraph. हरे कृष्ण माता जी, यहाँ से पढ़ना है जब आपको पसीना आ रहा हो तो यहाँ से पढ़ना है माता जी। ये अन्य जब अन्य आपको पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हाँ। अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, ना तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदें, ना ऊपर पांव रखें, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पाप में है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नाम का जप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार हैं। जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना,
शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना, कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो वह सबसे बड़ा अपराध होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने आप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराध पूर्ण है और इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन का वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म कांड मानना, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश ना देना ही श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा ना रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। Okay, so that is the end of the chapter. Now, do we have some questions about this? Because there were some strange things here. Like not wearing red or blue clothes and things like that. Yes, Mataji, this is very, like, I'm so sorry. Hare Krishna, Mataji, Dandavad Pranam, Mataji. I was like Okay. wondering, why is it mentioned that one should not wear a woolen kambal in front of the deities? Well, actually, in my version, it says fur, animal fur. Where it was. Mataji, can I tell what I heard once in one lecture? Tell me, what did you hear? Mataji, Yeah, this one in the English version, it definitely says one should not wear a fur blanket. It doesn't say woolen. Okay, okay, that is The wool itself is actually pure. You can wear wool even on the altar, and wool and silk are so pure that you only need to wash them if they're dirty. You don't even have to wash them every day. They're considered very pure. But in the picture on the slideshow and in the English version, it says a fur blanket. Okay, no, Where was that fur blanket? And one more query, Mataji. It is said that you should not come in front of the deities while sitting on some vehicle or something. But I'm thinking about like a person who's in wheelchair, then what should be the proper Well, way? you should come for darshan. Thank you. No problem about that, because our, let me say there, let me get rid of it. Okay. Thank Okay. Yeah, so a lot of these things that are here, why I wanted to stop for questions, are things that we don't do. We don't worship banyan trees either. Prabhupada added tulsi trees just so that we wouldn't get totally confused. And things like not wearing red and blue clothes. And Irmala in her picture emphasized the not wearing unclean clothes, not the red or blue. Yes. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Okay. Any Hare further Krishna, Mataji. questions? Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम माताजी। धन्यवाद। माताजी, इसमें 21 है, जो शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चे विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चे विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो माताजी, ये ऑयल क्यों नहीं यूज करके मतलब हम जाते हैं ऑल्टर में? This is about using oil before going on the altar. Yeah, it shouldn't be used.
She's I'm asking not, why it should not be used. because because oil is not clean. Oil is considered not clean, and you've got oil on your hands and you go and touch the deity with oil that you've used for your own sense gratification. It's different if you're offering oil to the Lord, but this is your own oil, so it's your own prasadam oil that's touching others. And generally, oil is not clean. इसके अंदर माता जी mm, कि जो तेल होता है वो शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता, और ऐसा भी है कि जो हम तेल लगाते हैं अपने शरीर में, हम अपने शरीर के लिए लगा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए नहीं लगा रहे। तो ऐसा नहीं कि हमने हाथों में तेल लगाया और हम भगवान को छूने लगे, लेकिन आप भगवान को तेल लगा रहे हो, वो एक अलग बात है। So the proper Vedic sadhana is to apply oil to your body before you take a bath, not afterwards. So in the modern life, we've got a habit to take our bath and then put in our moisturizing cream. This is not correct according to the Vedas. According to the Vedic way of doing things, you apply oil to the body and then you have your bath. And then your skin is clean, and it is actually oil because the oil isn't all removed. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो वैदिक तरीका है वो ये है कि आप स्नान करने से पहले अपने शरीर पर तेल लगाएं, और जिससे स्नान करने के बाद आपका शरीर जो है वो साफ हो जाता है। जैसे आजकल का क्या तरीका है कि स्नान करके लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने शरीर पे, क्रीम लगाते हैं, तो वो गलत है। स्नान करने से पहले लगाना चाहिए ताकि वो उतर जाए स्नान करते समय। Now, I haven't been overly strict with our pujaris because it has become such a habit these days to put this moisturizer on a bath. But technically, it's not correct. If one is going to do deity worship, one should put the oil on first. One should have a bath and put on clean clothes and come in such a clean condition to the altar to serve the Lord. तो अभी पुजारियों के साथ भी बहुत सख्ती है कि साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल स्नान करके ही भगवान के ऑल्टर में प्रवेश करना चाहिए। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you. Any other questions? So here, Rupa Goswami is giving us a culture, and Prabhupada is giving us the verses that Rupa Goswami has given as examples. But it's not that we should follow every single detail. He's trying to give us the culture, the Vedic culture of how to behave respectfully towards all living entities and towards the deities as well. तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है वो हमें एक तरीके का व्यवहार, एक कल्चर दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और जो श्रीला प्रभुपाद हैं उन चीजों को सिद्ध करते हुए उनके श्लोक दे रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीज का बहुत ही सावधानी तरीके से पालन कर पाएंगे, लेकिन जो सार है उसका ये है कि हमें पवित्र तरीके से भगवान की सेवा करनी है और भक्तों का आदर करना है। Okay. Even the example of worshipping Ganesh before you start your other worship. I mean, you'll probably find that the Pandit who's doing the yagya has Ganesh and all the other demigods in his mantras, because he's respecting everyone according to this very strict rules. But we're following Pancharatriki Vidi, which is more focused simply on worshipping Krishna. तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए एक गणेश जी की पूजा का उदाहरण आया, तो जैसे पंडित वगैरह होते हैं तो वो आप देखोगे कि उनके मंत्रों में सबसे पहले देवी देवताओं का नाम होता है, गणेश जी का और अन्य देवी देवताओं का। पर क्योंकि हम पांच रात्रि की विधि का पालन कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। And then we come into Bhagavad Vidi, which is mostly about listening to Srimad Bhagavatam and chanting the holy name. और फिर हम आते हैं भागवत विधि पे, जिसका यही है कि भगवान का जप करना और भागवत को पढ़ना। Okay, now we have a hand up from Arav Kaura. यमुनेश्वरी माता अपना प्रश्न करिए। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. प्रणाम माता जी। माता जी, my question is that nowadays means today
some people are keep the fasting of Ekadashi, and some people will have tomorrow Ekadashi. But means so today we have take the grains or all these things, wheat also, and some people will take also tomorrow wheat and grains. So I want to just know what is the difference, because so we माता जी, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आज हमने सब कुछ ग्रहण किया, मतलब कि खाना भी खाया, और जो भी हम नियम करते हैं जैसे हेड वॉश नहीं करना वो एकादशी के दिन, तो आज हमें क्या पाप लगेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज भी एकादशी मना रहे हैं, और फिर जो कल हम रखेंगे, कल जिन लोगों ने रखी होगी वो सब ये काम करेंगे। तो माता जी, वो तो मुझे पता है कि शास्त्रों के अनुसार कल है एकादशी, बट जिन लोगों ने आज रखी है, जो लोग कल नहीं रखेंगे, तो उनके साथ क्या होगा माता जी? आई जस्ट वांट टू नो। And I got some of it, but you better summarize for me just in case I missed something. The question is that some people are fasting today for Ekadashi and some will fast tomorrow, and because Shall I we are- answer? I'll answer that one first. Yeah. So the Ekadashi Titi starts today, but it continues tomorrow. Now, Dinabando actually talked about it in his class this morning, but he says even as when you've got an Ekadashi starting on one day and continuing to the next day, the day Ekadashi, to observe the Ekadashi must start during the Brahma Muhurta. And he said even more important than that is when the Dwadasi splits over 2 days, then we should observe the second day as a Dwadasi, so we should observe Mahadwadasi for fasting. So this is technicalities according to the scriptures. So it's because he is explaining that a titi is not a fixed length. Sometimes titis are only 4 or 5 hours, and sometimes they're much more than 24 hours. So this is all done according to the moon. And I don't know how it's worked out. I have no idea, because the moon goes around at even pace. But this is how it works out. If there's an overlap from Ekadasi onto Dwadasi day, then Dwadasi is more auspicious day for fasting. And if the Dwadasi overlaps onto the next day, then we should definitely observe the Mahadwadasi as an Ekadasi fast day, because we shouldn't have the Dwadasi carrying on for too many days. That's what he was explaining. Okay, the rest of the question. So the question is that we had grains today. So what will happen to us, and what will happen to those who will have grain tomorrow because they are fasting today? Okay, so we don't need to worry about that, because we're observing Ekadasi fast to please our spiritual master in the line of the Parampara. We're not worried about the Papa Purush, because one name of Krishna is sufficient to destroy more sins than we're possibly able to commit. Now, I said that Papa Purush, one mouthful of grains on Ekadasi is equivalent to killing 1,000 brahmanas. But one name of Krishna is capable of wiping all that out. So our observers, as Srila Prabhupada said in his commentary, that our focus in Ekadasi is to remember Krishna more and reduce our material needs. It's not so much worrying about Papa Purush. Okay. And was there Right. more to the question? You're looking tired. Is there more to that question, or we finished the question now? यमुनेश्वरी माता जी, आपके प्रश्न हो गया या अभी कुछ और है? हो गया माता जी, समझ आ गया मुझे। Okay. अंडरस्टैंड जो उन्होंने बता Okay. दिया। पहले वाला तो Anything पता था, else? दूसरे वाला पता चला है कि जो उन्होंने बताया ना कि ग्रेन्स वाला, ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी Thank मच। you. And there was an example even in Prabhupada's time. For some reason, they were serving prasadam. For some reason, the devotees started eating before Prabhupada started eating. And as soon as Prabhupada saw his plate, he saw that there were peas in the sabji. He says, no, you can't eat peas on Ekadasi. And the devotees panicking, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do? And Prabhupada said, no, you just observe the next day. So the order of the spiritual master is more important than the particular vrat.
तो माता जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार श्रीला प्रभुपाद के समय में भक्तों ने प्रसाद बनाया एकादशी पर, और प्रभुपाद प्रसाद पाने बैठे उससे पहले ही भक्त बैठ गए, ऐसा हुआ। तो उसके अंदर भक्तों को नहीं पता था, जब प्रभुपाद पाने बैठे तो उनने तो मटर डले हुए हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम मटर नहीं खा सकते, आप एकादशी पे आपने क्या किया। तो भक्त कहने लगे कि प्रभुपाद अब हम क्या करें, हमारा हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप कल एकादशी व्रत करना, मतलब अगले दिन। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है, माता जी कह रहे हैं कि जो गुरु का आदेश होता है ना, वो उस चीज से महत्वपूर्ण होता है, तिथि वगैरह या किसी भी चीज से। So there are also 8 things you can eat without breaking a fast. And things like water and milk and roots and grains, but also included, strictly speaking, you can eat Mahaprasad on Ekadasi, but we don't because Prabhupada has asked us not to. But Mahaprasad that has been offered to the deity is so transcendental that if our mind was transcendental, we could eat that also. तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें जो व्रत नहीं तोड़ती, जैसे कि दूध वगैरह। माता जी बता रहे हैं कि जो महाप्रसाद अर्च विग्रहों को भोग लगता है, हम एकादशी पे वो महाप्रसाद भी खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस चीज को मना किया, क्योंकि महाप्रसाद इतना दिव्य है कि वो लेने से कोई भी व्रत नहीं टूटता। पर क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, वो इतनी दिव्य नहीं है, इस कारण से हम महाप्रसाद नहीं पाते। And other thing that is excluded is what's been given or ordered by the Brahmana to eat. So in other words, what the sadhus in the temple tell you to do, you can do. And another one is medicine. You can always take medicine. You don't have to try and work out whether your medicine's got grain in it or not. If you've been prescribed medicine, you can take it. तो इसमें माता जी कह रही कि दवाइयां आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसी दवाई है जो आपके लिए लेनी जरूरी है, तो वो लेने से आपका व्रत नहीं टूटता, और या फिर जो भी आपके आसपास के मंदिर में नियम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। एंड माता जी, आई हैव वन क्वेश्चन अराइजिंग एज यू मेंशन अबाउट महाप्रसाद। सो आई हैव सीन temple devotees, whatever mahaprasad they cook, it usually goes for the donors or the people who are, regular donating large amount of Lakshmi to the temples. So temple people give that mahaprasad to them on Ekadashi also. Yeah, they do. Because and what people don't know, it does not cause an offense. Like if these people are donors, they're not actually devotees, it doesn't cause an offense. Here in Vrindavan, they keep the Mahaprasad and they distribute it the next day to break fast. They don't actually. We know that it's wrong, and if we are doing it, is that correct? Even after knowing that it's not correct. Well, actually, our principle is preaching, right? So yes. we shouldn't be unnecessarily upsetting people while we're trying to cultivate them in Krishna consciousness. I mean, Prabhupada gave the example that he asked people to chant Hare Krishna. He didn't sit them down and say, you can't join here unless you follow 4 regulative principles, right? He was preaching. Even when I started, I was quite upset because there was in the local temple that I was going to in New Zealand on Janmashtami, they had 2 tables set up. They had one table with the Ekadasi Prasad and one table with grains. But nobody told me that the Ekadasi Prasad was for the devotees. So I just took something from both the tables. And then later I found out that we were supposed to be eating on the Ekadasi Prasad. I said, why didn't you tell me? I was quite upset with them for not telling me. But basically, the Prabhupada gave the principle of spreading Krishna consciousness as being more important than all the little details in the beginning. So first they become attracted to Krishna consciousness, and later we ask them to follow all the rules and regulations. And at some places, I also saw that on Ekadashi, like khichdi is distributed in the evening and in the morning in all the temples. So they are distributed. Some temples are distributing samak khichdi or maybe sabudana kheer on Ekadashis, but some temples are distributing the normal khichdi which we eat daily.
Yeah. on So Ekadasi. so it's actually That's the observance of Ekadasi is not standard. If you read that paper on Ram Navami fasting, this Shastric Advisory Council paper, they researched all through all the Gaudiya Mats and everything, and they found that some of the Gaudiya Mats have their own fasts. Like individually, you can choose what you want to fast, and some were fasting completely, some were fasting on only Ekadasi type prasadam. And there were all different rules and that was even in the Gaudiya Mat. And the Sri Sampradaya was even more different, and also not standard. So it's not actually this what we're following as an Ekadasi Vrat is not written in the Shastra. In the Shastra, a fast is from sunrise to sunrise. Don't eat, don't drink. Chant Hare Krishna for 24 hours. So this what we're given for Ekadasi was given to us. It's come in, I don't know, Bhakti Siddhanta gave it, or Prabhupada has tailored it especially for us. But basically we have to follow because we're given by our Guru Parampara. Rupa Goswami also, no? Fasting on Ekadashi. Yeah, but they were fasting, no eating. They weren't worrying about whether it was grains or non grains. They were fasting, no food, no water. Like Prabhupada, when he was asked about Urja Vrat, which is Damodar Vrat, he says, oh, you can do Urja Vrat if you want. Don't eat, don't sleep, just chant 24 hours for the whole month. He was saying that's what Urja Vrat is. But in Shastra, a fast is a fast from sunrise to sunrise, no eating, no drinking. And what Prabhupada has given us is a modification for our Kali Yuga brains. Okay, Soumya Mataji has her hand up again. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, इसी से रिलेटेड है कि जैसे हमारे कौन से मिड डे मील जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो एक माता जी टीचर है वहां पर, मतलब यामिनेश्वरी माता जी की सिस्टर है, वो कई बार मुझको कंप्लेन कर चुकी हैं कि आप लोग तो बोलते हैं कि ना अन्न खाना चाहिए, ना ही अन्न बांटना चाहिए, खासतौर पे राइस। तो कहते हैं हम लोग कितना मना करते हैं, उसके बाद भी हमारे को खिचड़ी दी जाती है बच्चों को, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग इसके लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? तो माता जी, उसके लिए मिड डे मील में तो मैंने एक बार महाराज से भी डिस्कस किया था, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो एक अलग पार्ट है मिड डे मील का जो स्कूल्स में जाते हैं ये। तो माता जी, उसके लिए हमारे को किस तरह से समझा पाए हम कि वो लोग थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप लोग इस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी जगह आप फ्रूट्स दे दें या कुछ और दे दें। तो माता जी, उसके लिए क्या करना चाहिए, कहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कैसे, मतलब उनका? हरे कृष्णा। The question is that as ISKCON is distributing midday meals as well. So on Ekadashi day also they distribute the same grains and everything. And what we teach in our classes, what we preach is that we should neither eat grains nor should we distribute it. So there's a devotee who is working in a school where midday meal is sent. So they see that on Ekadashis also they send grains and they are requesting, but still they are not listening to it. So how do we explain this to them? Well, yeah, see, this midday meals is a mass production. So it's probably difficult for them to adjust it. Like for one school, they're probably doing for multiple schools all in one day. It's probably very difficult to adjust it. And then you go to another school and the children don't want to eat fruits and things like that. Actually, we're from New Zealand. I had a friend and she was following Ekadasi, but her idea of Ekadasi was different. On her Ekadasi, she doesn't eat rice. But you can soak the rice and grind it with urad dal. You can make dosa. Dosa is fine. You just don't eat rice. You don't eat the whole grain of rice. You can eat anything else, but you just don't eat rice. So there's all varieties of Ekadasi fast. And when it comes to midday meals, because it's a bulk distribution process, it's actually
not strictly what Prabhupada gave us. Prabhupada wanted our prasad distribution to be accompanied by the distribution of the holy name. So midday meals is kind of stretching what Prabhupada gave us, because midday meals then becomes government sponsored. So you have to fit in with the government rules. And that probably comes into it as well. You probably can't just tell the temple because the government rules come in. Like this thing Guru Maharaj keeps talking in his classes. Now they want to distribute, the government wants to distribute eggs in the midday meals. So some of the ISKCON centers are actually distributing eggs in the midday meals because that's what the government wants. तो इसके लिए माता जी बता रहे कि हर किसी का हर चीज का फर्क होता है। जैसे माता जी की एक सहेली थी, वो क्या करती थी, एकादशी पे चावल नहीं खाती थी। चावल को भिगो के पीस के उसका डोसा बना के खा लिया, लेकिन हमने चावल नहीं खाने। तो हर व्यक्ति का हर चीज करने का अपना अपना तरीका होता है। और जो प्रभुपाद ने बोला था कि हमारा जो प्रसाद वितरण होना चाहिए हरि नाम के साथ, तो मिड डे मील में प्रसाद वितरण तो हो रहा है पर हरि नाम नहीं हो, तो उस चीज का थोड़ा सा अलग है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मिड डे मील वगैरह इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनको सरकार से कुछ छूट मिलती है, कुछ फायदे मिलते हैं, और इसी कारण से सरकार के कुछ नियम हैं जो बीच में आते हैं, जिस कारण से वो उनको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। दूसरी बात कि सरकार का कहना है, गुरु महाराज बताते हैं आजकल की सरकार का ये कहना है कि मिड डे मील में अंडे भी खिलाओ बच्चों को। तो इस्कॉन के भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां मिड डे मील से अंडे जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी उसके हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है, इस कारण से ऐसा होता है। Yeah, when you get tied into taking government money, you have to stick to government rules. तो जब आप सरकार से पैसा ले रहे हैं तो आपको उनके नियम भी मानने पड़ेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Anything else from anyone else? हरे कृष्ण माता जी, एक इसमें मैं थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ। अभी जैसे बताया था कि गुरु जैसे कहते हैं तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि नेक्स्ट डे आप एकादशी रखें, तो एक बार ऐसा, मतलब मैं कंफर्म भी करना चाहती हूँ कि ऐसा है, मतलब मैं ठीक से सुना है कि एक बार प्रीचिंग के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ डिवोटीज गए थे, शायद ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ थे। तो वो उन लोगों को बहुत टाइम से उनका कोई मैसेज नहीं आया था और बहुत टाइम से वापस नहीं आए थे, और अचानक से जब वो वापस आए तो प्रभुपाद इतने खुश हुए, और उस दिन एकादशी थी तो प्रभुपाद ने उनके लिए बहुत सारी, मतलब पूरी और सब्जी और ये सब कुछ बनवाया और उनको खाने के लिए बोला। तो माता जी, क्या मैंने ये ठीक सुना है? हरे कृष्णा। Maybe she is asking that, like you shared, that we should fast for the spiritual master as per the spiritual master, like Srila Prabhupada told them to fast the next day. So there once what happened, like Brahmanand Swami or some devotee, they went to Pakistan for preaching when Srila Prabhupada was there on this earth. So they were missing from a long time, and when they came back, that was Ekadashi, but Srila Prabhupada made a feast and feed them, and then he said you can fast tomorrow for Ekadashi. And good. So Yeah, is it true? Have you heard about it? I haven't heard about it, but one thing I do know, for Bhaktisiddhanta Sarasvati, he had them fasting on Ekadasi, and then some of his brahmacharis wouldn't go out preaching on Ekadasi because they said they had no strength to go out preaching on Ekadasi. So Bhaktisiddhanta said, okay, you can eat grains, but go out and preach. So he put the preference on going out and preaching. तो माता जी बता रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बार माता जी ने सुना है कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कुछ शिष्य थे, वो एकादशी के दिन व्रत रख के और प्रचार पे नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारे शरीर में ताकत नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आप अन्न खाओ, अपना भोजन लो और जाओ प्रचार पे जाओ। उनका ज्यादा जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रचार करना। So Prabhupada is following his spiritual master's mood. और प्रभुपाद जो है अपने ही गुरु का भाव आगे लेके चले हैं।
Any other comments or questions? I don't think so, Mataji. Okay, we can stop here. Okay, thank Mataji, you very much. you are going for that trip. Yeah, I am. When is it starting? 26th of December. Okay. So we'll have next class. Yes, so today is the 8th, right? Next is 15th. Yeah, so 15th is fine, and the following day, following week, 22nd should also be fine. So we should have 2 more classes. Okay, Mataji. Yeah, that should be fine. Then next year we'll meet. We'll And have then we'll class. meet, yeah, then I'm coming back on the 13th of January. And yeah, we'll have to see then, because then I'm teaching online also. Bhakti Sarachar online. It's starting actually in the beginning of January, but I may not be available for the beginning of that. So yeah, after I'm coming back on the 13th of January, and then we'll have to see depending on what I'm teaching. But I'm not teaching that much. I'm only teaching two courses of 5 days each. So we'll see how it fits in. Okay, Mataji. All right. Thank you. Hare Krishna. Vancha kaltarubhyascha. Kapatarubhyascha kripa कृपा sindhubhya सिंधु eva cha पतितनां patitanam वैष्णवेभ्यो pavanebhyo Vaishnava. Thank you, Mataji. Thank Thank you you for so your. much, Mataji. Hare Okay. Krishna. Thank you. कृष्ण Hare माताजी Krishna. प्रणाम। Hare Thank you, Krishna. Mataji. Dhanyavad. Hare थैंक यू Krishna, माताजी। Dandavat Pranam. धन्यवाद, प्रणाम, Thank हरे you. कृष्ण। Hare Krishna.